Welcome students, here we are discussing phylum Hemiquadrata. In earlier lectures we discussed about phylum Echinodermata and other rest of the invertebrate phyla, right? But here this is very important and considered as connecting link between non-chordata and chordata. So just have a look at the features of Hemiquadrata, okay? These animals are soft-bodied animals and they show worm-like body. You can see here one example is shown on the board, Balanoglossus, and these animals are worm-like, commonly called acorn worms. So these animals are called acorn worms due to their worm-like body. Okay, these are found in marine water, so they are called exclusively marine animals. They are found only in marine water and never in fresh water, so they are exclusively marine animals. Of course, these animals are free living mostly, but some members are sedentary, like Rhabdoplura. Okay, Rhabdoplura, you should learn this particular name, very important for interest point of view. Rhabdoplura is sedentary, while other members are free living members. They are bottom dwellers. Okay, they form burrow at the bottom of sea. These are burrowing animals. ये जो वर्म होते हैं ये सी के बॉटम पे यू शेप बरो बनाते हैं. They are burrowing animals, burrowing worms. Okay, and they form U-shaped burrow just like this at the bottom of sea, and these burrow are helpful for their protective features, right? They may enter through this side and may leave the burrow through this opening. So two different openings are there to their burrows. Their proboscis is going to help in burrow formation, okay, and they can move with the help of their rest of the body. They can move by body, okay, and they can form such burrow by their proboscis. So very important, and that is the typical feature here we can say. So here you should remember hemichordates are bilaterally symmetrical worms. They are bilateral, they are coelomic, and they are triploblastic. They show tube within a tube body plan. Okay, general features you can write like this. These are triploblastic worm. Okay, these worms are coelomic. These worms shows tube within a tube body plan, tube within a tube body plan, and similarly they are unsegmented worms. Okay, these worms are unsegmented, you should remember. Okay, and these worms are very soft worm like body. Their body is divisible into three different parts. Proboscis, collar region, middle part, collar region, just like neck we can say, and their trunk, and their long trunk you can see here. So proboscis is the part which is going to help in burrow formation and digging the soil. Okay, that is very helpful, and they show their mouth right there in proboscis on ventral side. They have collar region as well. Collar region act as a neck connection between proboscis and trunk is the rest of the body. Okay, they show presence of gills. यहाँ पे होते हैं गिल्स जो दो रोज में अरेंज है, आप देख सकते हैं longitudinal rows in their anterior trunk part. They shows two pairs, or we can say two rows. Okay, paired rows ऐसा कह सकते हो आप. तो यहाँ पे दो rows होते हैं longitudinal गिल्स के, जो कवर्ड होते हैं by gill slits और ओपन होते हैं बाहर की तरफ by gill slits. Okay, their gills open to the outside by gill slits through which they can respire in water. So respiration occurs by their gills, okay, which are arranged longitudinally into rows in their anterior trunk part. So these worms are bilaterally symmetrical. As you can see here, their body can be vertically divided into two equal halves, okay, through that vertical plane. That's how they show bilateral symmetry. इनका symmetry कैसे होता है? Bilateral होता है. Bilateral symmetry they show. Okay, bilateral symmetry is typically seen in such worms. So these worms shows open circulatory system. इनका जो circulatory system है वो पूरी तरह ओपन होता है. ओके, और इसमें ब्लड साइनसेस में ब्लड फ्लो होगा, राइट. और आप देख सकते हो जैसे कि एनालिड्स में हमें क्लोज सर्कुलेशन तो मिला था, बट बाकी सारे इन्वर्टिब्रेट मेंबर्स में हम देख रहे हैं कि ओपन सर्कुलेशन कॉमनली मिलता है. और इन एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, ठीक है. और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है
ये मोस्टली स्ट्रेट होता है या किसी मेंबर में यू शेप भी देखने को मिलता है, जस्ट एज सीन इन सम मोलस्का, ठीक है, गैस्ट्रोपोड्स में हमने देखा था। तो इनका जो फूड रहता है वो फूड रहता है माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, दे फीड्स ऑन माइक्रोब्स एंड दैट्स हाउ दे आर इको क्लीनर्स, they are cleaners of marine habitat and they clean the water from microbes, microbial organisms. So these microbes इसी पे वो फीड करते हैं, वो क्रीप करते हैं, मूव करते हैं, मूव थ्रू देयर बॉडी, थ्रू बॉडी, ओके। उनका जो मसल्स है बॉडी में यहाँ पे, तो इन मसल्स की मदद से वो क्रीप या मूव करते हैं बॉडी के अंदर, या आप कह सकते हो स्विम भी कर सकते हैं, राइट। देयर मूवमेंट इज ड्यू टू देयर बॉडी, और वो सिलियरी एक्शन से अपना फीडिंग भी कैप्चर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें इनका जो बक्कल कैविटी है, ठीक है, बक्कल कैविटी, उस बक्कल कैविटी में बक्कल डाइवर्टिक्यूलम मिला है, देयर इज अ बक्कल डाइवर्टिक्यूलम, ओके, एंड दैट बक्कल डाइवर्टिक्यूलम is point of interest of different scientists, which is present in the proboscis only। यहाँ पे देख सकते हो आप proboscis collar trunk ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो proboscis पार्ट आप देख रहे हो, एंटीरियर पार्ट है बॉडी का, उसी में ये खास बक्कल डाइवर्टिक्यूलम मिला है, राइट। और ये बक्कल डाइवर्टिक्यूलम होता है रॉड लाइक, सो अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डाटा, ठीक है। कॉर्डेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, हार्ड स्टिफ रॉड लाइक सपोर्टिव प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो नर्वस सिस्टम को आइसोलेट करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी से। तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बक्कल डाइवर्टिक्यूलम इन वर्म्स में मिलता है, दैट्स हाउ अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट दीज आर कॉर्डेट्स, ओके। लेकिन ये सारे साइंटिस्ट को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाए हैं कि क्या ये नोटोकॉर्ड है, दैट्स हाउ still it is a state of confusion, and that's why it is included still in invertebrate या non-chordate phyla। तो ये अभी भी non-chordate में रखे गए हैं, but considered as connecting link between non-chordata and chordata। हाँ, connecting link आप इसको जरूर कह सकते हो, क्योंकि इसमें chordate जैसा कुछ तो है, और वो है बक्कल डाइवर्टिक्यूलम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखिए, बक्कल डाइवर्टिक्यूलम कैन बी कंपेयर्ड विद notochord of chordates, that's great, very important। तो ये इसकी खास फीचर आप समझ लो कि होती है, राइट, बक्कल डाइवर्टिक्यूलम। इनका हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है, कंप्लीट है, एक एंड पे माउथ है, दूसरे एंड पे एनस है, सो दैट्स हाउ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आप कहिए, और सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ये माइक्रोब्स पे फीड करते हैं और सिलियरी एक्शन से अपना फूड ये कैप्चर करते हैं, राइट, बॉडी की हेल्प से मूव करते हैं, इनका सर्कुलेशन ओपन है, राइट। और इन वर्म्स में अब नर्वस सिस्टम की बात हो जाए, ठीक है, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स का इनके एपिडर्मिस से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, एपिडर्मिस बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड आप देख सकते हो। डॉर्सल और वेंट्रल साइड जो बॉडी की वेंट्रल साइड होता है, ये डॉर्सल साइड होता है ऊपर का। तो ये दोनों साइड में एपिडर्मिस यानी जो स्किन है ऊपर की, उसी में न्यूरॉन्स का नेटवर्क की पूरी तरह स्प्रेड होता है बॉडी में, दैट्स हाउ देयर नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद देयर एपिडर्मिस, ओके। बहुत ही नई चीज आप देख सकते हो। और एक्सक्रीशन के लिए इसमें खास चीज है, एक्सक्रीशन इनका ग्लोमेरुलाई से होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस सिंगुलर, जो उनके प्रोबॉसिस में रहता है। कहाँ पे रहता है इनका ग्लोमेरुलस, इन देयर प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस में जो डिगिंग पार्ट है, डिगिंग के लिए यूज होने वाला पार्ट है प्रोबॉसिस, ओके। तो उसी में इनका ग्लोमेरुलस एसोसिएटेड होता है, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर करते हैं। सो एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय ग्लोमेरुलस एंड their circulatory system is open, respiration occurs by gills, okay, nervous system is associated with epidermis। So I am repeating continuously important features, and here finally we should mention its reproductive system, okay। तो ये जो worms होते हैं कॉर्न वर्म्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ओके। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, बट सम वर्म्स, कुछ वर्म्स जो है वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं। सम आर हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, इसमें दोनों सिस्टम आपको मिल जाएंगे। सो सम वर्म्स आर बाइसेक्सुअल, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वर्म्स आर यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं ऑफ कोर्स। इनमें आप देखोगे कि ये वर्म्स ओविपैरस है, ये एग ले करते हैं, ठीक है।
इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और इनका डेवलपमेंट ये लार्वल स्टेजेस से होता है, इसीलिए इनडायरेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसका मतलब हुआ थ्रू लार्वल स्टेजेस। इसमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे और इसीलिए ये आप कहिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ओके, और बेस्ट एग्जांपल में आएगा बेलेनोग्लॉसस, राइट, या फिर सैकोग्लॉसस। ओके, और रैप्डोप्लूरा, ये भी आप लिख सकते हो, रैप्डोप्लूरा। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये सब फ्री लिविंग है, ये सिडेंटरी होते हैं, हमने पहले ही कहा आपको। और ये वर्म्स का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है, ये माइक्रोब्स पे फीड करके इको क्लीनर्स एज अ एजेंट, वी कैन से इको क्लीनर एजेंट ऐसा भी काम कर रहे हैं। और इन वर्म्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हमें दिखाई दिए। ओके, बरोइंग हैबिटेट में ये रहते हैं, एक्चुअली मरीन हैबिटेट में बरो करके रहते हैं, राइट। और इनके बरोज यू शेप होते हैं, कभी कभी इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी यू शेप होता है, जस्ट लाइक गैस्ट्रोपोड्स, मोलस्का, ठीक है, लेकिन मोस्टली स्ट्रेट होता है। ये हर तरह का मॉडिफिकेशन दिखाते हैं फीडिंग पर्पज से, जैसे कि माइक्रोब्स पे फीड कर लेते हैं। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और इनका रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स गिल स्लिट्स थ्रू होता है, जो इनके अपर ट्रंक रीजन में रहते हैं और 2 लॉन्गिट्यूडनल रोज में रहते हैं। ओके, इनका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर अगर कुछ है बट तो वो है बक्कल डाइवर्टिक्यूलम, जो इनके एंटीरियर पार्ट में रहता है, इनके प्रोपोसिस से एसोसिएटेड रहता है, इनके माउथ में रहता है। और कुछ लोगों का मानना है कि वही नोटोकॉर्ड है। ओके, नोटोकॉर्ड की शुरुआत यहीं से हुई है। जैसे कि हम जो है कॉर्डेट है, हम नोटोकॉर्ड बीरिंग एनिमल से, हमारा नोटोकॉर्ड अभी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। जो बैकबोन है हमारा वो वर्टिब्रल कॉलम है और वही हमारा नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो जिसमें नोटोकॉर्ड रहता है वो कॉर्डेट्स होते हैं, बट इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम बक्कल डाइवर्टिक्यूलम है। ओके, तो ये जनरल कैरेक्टर्स के बेस पे आप काफी आसानी से इस पे नोट लिख सकते हो, या इस पे डिपेंडेंट मल्टीपल चॉइस आप सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल्स इंक्लूड बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस एंड रैप्डोप्लूरा। बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। तो ये ट्रंक रीजन जो है, इसमें अपर रीजन में इसके गिल्स है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी। ओके, बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, रैप्डोप्लूरा जो सिडेंटरी है, काफी टिपिकल एग्जांपल्स। ओके, सो होप सो यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट दीज एनिमल्स और दिस फाइलम हेमिक्वाड्रेटा। कलेक्टिवली इसमें सारे कैरेक्टर्स कुछ कॉर्डेट जैसे, कुछ नॉन कॉर्डेट जैसे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा कनेक्टिंग लिंक। स्पेशली बक्कल डाइवर्टिक्यूलम कैन बी कंपेयर्ड विथ नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट। हाँ, नर्वकॉर्ड रहता है, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहते हैं जो कि एक्चुअली अपर इसके ट्रंक रीजन में है, बट फिर भी ये बेसिकली जो है नॉन कॉर्डेट ही है और नॉन कॉर्डेट फाइलम में ही रखा गया है। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स we will discuss characteristics of chordata, okay, and the higher animals will be studied later on. Okay, thanks for watching.